Good morning, friends. Namaste, bachcho. Today we discuss the chemical reactions of aldehydes and ketones with a nucleophile. In last lecture, we discussed the distinguished test of aldehydes and ketones. Okay. Now today we will discuss chemical reactions of aldehydes and ketones with a nucleophile, addition of a nucleophile. Now you know that in carbonyl compound in aldehydes and ketones, C double bond O group is present. Okay. In that C double bond O group, that oxygen is a negatively charged, carbon is a positively charged, and that bond is a polar bond. That carbon is a electrophilic center. बराबर है, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है. सो द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज टेक्स प्लेस ऑन दैट कार्बन. कहां पर होने वाला है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. नाउ इन दैट जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ aldehyde and keton with nucleophiles, there are different types of reaction. In that there is a addition of a HCN, hydrogen cyanide, there is addition of sodium bisulfite NaH SO3. उसके बाद में है रिएक्शन विद अल्कोहल्स, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन ऑफ aldehyde and ketone with ammonium derivative. Then aldol reactions, halform reactions, then aldol condensation and कैनिज़रो रिएक्शंस. इतने रिएक्शन हमको इस हेडिंग के अंदर लर्न करना है. ओके. नाउ इसमें से फर्स्ट एडिशन एलिमिनेशन और दैट इज अ condensation type of reactions. So we discuss these reactions. HCN means hydrogen cyanide. We see the addition of a HCN, addition of a hydrogen cyanide. तो क्या होता है आपको पता है अभी, in that aldehyde R single bond C, double bond O single bond H. Okay. In that aldehyde, that carbon is a
अगर हम एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड Cn। इस तरह से एसिटाल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बन जाता है। लाइकवाइज अगर हम केटोन के साथ में एसीटोन के साथ में रिएक्शन देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, अगर इसके साथ में अगर HCN की एडिशन होती है तो क्या बनता है यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड Cn। ओके, इसी तरह से केटोन का साइनोहाइड्रिन बनता है। सो दैट इज अ एडिशन ऑफ HCN। Now if you observe toward that reaction, what happens in that reaction? इस रिएक्शन के अंदर एक प्रोडक्ट के अंदर एक कार्बन बढ़ जाता है। यहाँ पर 1 और 2 कार्बन थे, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन थे, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 4 है। मीन्स एक कार्बन बढ़ जाता है इसके अंदर। मीन्स दैट रिएक्शन इज अ स्टेप अप रिएक्शन। हमको कार्बन की चेन लंबी करना है, कार्बन की चेन बड़ी करना है एक कार्बन से, तो इस तरह की रिएक्शंस काम आती है। क्योंकि जो साइनोहाइड्रिन है, जो CN है, ये CN से रिडक्शन करके हम CH2 NH2 ग्रुप बना सकते हैं। दैट C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका कन्वर्जन हम CH2 NH2 में कर सकते हैं, इसका कन्वर्जन हम COH ग्रुप में कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह की रिएक्शन इससे होती है। सो दैट CN is used as intermediate for the preparation of so many organic compounds. Okay, and that reaction is used for the step up reactions. कार्बन की संख्या बढ़ानी है हमको, चेन के अंदर कार्बन का क्वांटिटी 1 से बढ़ाना है, तो इस तरह की रिएक्शन हमको काम में आती है। So that is the addition of HCN to the carbonyl compounds, aldehydes and ketone. Now we discuss same type of another reaction, that is a addition of sodium bisulfite. Addition of sodium bisulfite. That is reaction with NaHSO3. That is a sodium bisulfite. That is a सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। ये सोडियम का सल्फ्यूरस एसिड के साथ में सॉल्ट है। सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक आर डिफरेंट एसिड्स। H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड H2SO3 दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। तो ये इसका सॉल्ट है। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ दैट NaHSO3? तो इसका स्ट्रक्चर क्या आता है? तो इसका स्ट्रक्चर आता है that Na positively charged, O carry negative charge, single bond, S double bond O, double bond O, single bond OH, SO3H, NaHSO3. That is a structure for the sodium bisulfite. So now we discuss the reaction with that sodium bisulfite, additional reactions for that. See general reactions, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसके साथ हम अगर इस NaHSO3 की एडिशंस करते हैं तो दैट इज अ सिंपल एडिशनल रिएक्शन। ओके, बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहां पर क्या होता है, whenever that NaCO3 add to that aldehyde or ketone carbonyl carbon, then the negative part is attached to the electrophilic carbon and H is attached to that oxygen. So there is formation of क्या बनेगा, ये R as it is single bond C single bond H. अभी डबल बॉन्ड O converts into the OH, that converts into the OH, and the negative part SO3 attack on that electrophilic carbon, that SO3Na.
ओके, इन दिस वे द एडिशनल रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज अ सॉल्ट। एक क्या बन गया, सॉल्ट बन जाता है। जैसे एल्डिहाइड का बना, लाइकवाइज कीटोन आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश साथ रिएक्शन करते हैं, तो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है आपके बोर्ड में, तो 80% क्वेश्चन के अंदर जो मार्क्स है वो करेक्ट बैलेंस रिएक्शन के लिए मार्क है। मार्क्स के लिए करेक्ट और बैलेंस रिएक्शन के लिए मार्क है। जो रिएजेंट है यहाँ पे आपने रिएजेंट दिखाना जरूरी है, कैटलिस्ट दिखाना जरूरी है, तो ही मार्क मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन को 20% क्वेश्चन में मार्क होते हैं, और इसका कोई भी रिएक्शन का हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है तो रिएक्टेंट मालूम होना चाहिए, प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए, और कंडीशंस मालूम होना चाहिए। कैटलिस्ट है, हीट है, बॉयल है, जो भी है। अभी क्या आएगा इसका डिस्क्रिप्शन, whenever that ketone react with a sodium bisulfite, it undergoes the additional reaction and then there is formation of R single bond C single bond OH single bond R dash single bond SO3 Na, then there is formation of a sodium salt of such compound. Okay, now actually what happens here, यहाँ पर सॉल्ट बनता है। अब ये जनरल रिएक्शंस है, यहाँ आर के बजाय CH3 लो, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन बन जाएंगी। यहाँ आर आर डैश CH3 लेते हैं हम, तो यहाँ पर केटोन की रिएक्शन बन जाती है। हम यहाँ पर अल्किल ग्रुप बदल सकते हैं, रिएक्शंस चेंज हो सकती है, मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज होते हैं, रिएक्शन तो वही फॉर्मेट में रहेगी। तो क्या होता है यहाँ पर, ये जो सॉल्ट बन जाते हैं, बराबर है। बट ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट को अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं, जो सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्ट है एल्डिहाइड के और केटोन्स के, इसको अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर से एल्डिहाइड या केटोन रीजनरेट होते हैं। क्या होता है, अगर इस सॉल्ट को हम डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं, एसिडिक मीडिया के साथ ट्रीट करते हैं, तो इसका साथ रिएक्शन हो जाती है और फिर से एल्डिहाइड और केटोन रीजेनरेट होते हैं। फिर से क्या होता है, यहां पर एल्डिहाइड और केटोन का रीजेनरेशन हो जाता है। देखिए एल्डिहाइड का कन्वर्जन सॉल्ट में होता है, सॉल्ट का कन्वर्जन फिर से एल्डिहाइड में होता है, सिमिलर रिएक्शन विद केटोन्स। तो इसका बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट रिएक्शन। तो अगर एल्डिहाइड केटोन कंपाउंड है, आइदर एल्डिहाइड और केटोन, इसके अंदर कोई इंप्योरिटी है अदर देन एल्डिहाइड केटोन, सपोज अल्केन है, ईथर है, अल्कोहल है, ऐसी कोई इंप्योरिटी है, तो वो इंप्योरिटी को हम रिमूव कर सकते हैं बाय दिस मेथड। मीन्स दैट मेथड इज यूजफुल फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बराबर है, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दो एल्डिहाइड का मिक्सचर है तो सेपरेट नहीं कर सकते हम, पर एल्डिहाइड और हाइड्रोकार्बन मिक्सचर है, एल्डिहाइड और अल्कोहल मिक्सचर है, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड और केटोन का यहाँ पर सॉल्ट बन जाता है। उस सॉल्ट को आप बाजू में निकाल सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, और उसको फिर से हम इसे हाइड्रोलाइज करते हैं तो रिमेनिंग कंपाउंड निकल जाएंगे। जब हम सॉल्ट बाजू में करते हैं तो रिमेनिंग जो कंपाउंड है वो लिक्विड में चल जाएगा। इस सॉल्ट को ड्राई करके फिर से हम इसको HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो वी गेट अ प्योर एल्डिहाइड और वी गेट अ प्योर केटोन। सो दैट मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिर्फ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर इंप्योरिटी है तो वो हम बाय दिस मेथड सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज अबाउट द एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू द एल्डिहाइड एंड केटोन। अगर इसका एग्जांपल देखना है तो जस्ट यहां पर मैं R के बजाय CH3 लिख देता हूं, दैट इज CH3। ये अनदर एग्जांपल हो गया है, यहां पर CH3 in this way we write down the number of examples for the addition of sodium bisulfide. Now then we see the addition of alcohol. Now addition of alcohol जो reactions है तो यहाँ अल्कोहल की एडिशन होती है।
देखिए अभी तक जो दो रिएक्शन हम देखे, एडिशन ऑफ HCl एडिशन ऑफ NaCO3, दैट इज अ प्योरली एडिशन रिएक्शंस। कंप्लीट एडिशन होती है दो रीजन की एक दूसरे में, नया कंपाउंड बनता था। अभी यहाँ पर एडिशन एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। सो वी डिस्कस दैट रिएक्शंस R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये होगा एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल से हम रिएक्शंस करते हैं। अगर मैं यहां पर R-OH लिख देता हूं, तो जो एडिशन है, दैट एडिशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ये जो एडिशन रिएक्शन है किसकी, अल्कोहल की जो एडिशन है अल्डिहाइड के अंदर और केटोन के अंदर, तो दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। और यहां पर क्या बनता है, जो नेगेटिव पार्ट है इसके अंदर का, दैट इज R-O। जो R-O यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, दैट न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दैट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, बराबर है, एंड दैट H इस ऑक्सीजन को अटैक हो जाता है। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H एज इट इज, एक डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन होता है OH में, और यहां पर आता है O, और हमने R- लिया था OR-। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं हेमी एसिटाल। इस तरह के कंपाउंड हम बोलते हैं हेमी एसिटाल। यहां पर हेमी एसिटाल फॉर्मेशन होता है, रिएक्शंस यहां पर रुकती नहीं है, और हेमी एसिटाल का कन्वर्जन एसिटाल में होता है। हेमी एसिटाल कन्वर्जन एसिटाल में होता है। R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OR- सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, इसकी हम फिर से रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई HCl, then there is formation of R single bond C single bond OR- single bond H single bond OR-। such type of compounds are said to be the acetal। अगर यही रिएक्शन केटोन के साथ में होती है तो हम इसको हेमीकेटल कहते थे, और फाइनल प्रोडक्ट को केटल कहते थे। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो रिएक्शन है ड्राई HCl साथ में होती है। अगर हम यहां पर डाइल्यूट HCl लेते हैं, एक्वियस HCl लेते हैं, तो दैट रिएक्शन बिकम रिवर्स, बराबर है। मींस ड्राई HCl में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, हेमी एसिटाल बनता है। इस हेमी एसिटाल में हम डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं, दैट अगेन कन्वर्ट्स इनटू द एल्डिहाइड्स। ओके, सिमिलरली एसिटाल टू हेमी एसिटाल एंड हेमी एसिटाल टू एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन रिवर्स होती है। ड्राई HCl में फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, तो डाइल्यूट HCl में, एक्वियस HCl में रिएक्शन रिवर्स होती है, बराबर है। तो इसी तरह की रिएक्शंस केटोन के साथ में भी होती है। उसी तरह रिएक्शन विद केटोन, this compound is said to be the ketals। सॉरी, पूरा नहीं बनता है इसलिए हेमी केटाल। दैट इज अ केटाल। इस तरह से एडिशन ऑफ अल्कोहल होती है के अंदर इन aldehyde or ketone, same type of reaction takes place with the different aldehydes and different ketones। यहाँ पर R की बजाय आप CH3 और यहाँ H लेते हो तो aldehyde की रिएक्शन बन जाती है एसिटाल्डिहाइड की। R इज CH3, R- भी CH3 लेते हो तो केटोन की रिएक्शन बन जाती है, CH3 एसीटोन की रिएक्शन बन जाती है। मीन्स ऐसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, हम नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ aldehyde साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन जो है दैट
टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस एंड इन रिवर्स, इसमें हम डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, बराबर है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। सेम टाइप ऑफ रिएक्शंस इज आल्सो हैपन आल्सो कैरिड आउट विथ 1,2-diol और 1,3-diol, बराबर है, रिएक्शन विथ 1,2-diol और 1,3-diol। तो देखिए केटोन है R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश डबल बॉन्ड O। अगर इसके रिएक्शंस हम डायल साथ में करते हैं, मीन्स डाइहाइड्रिक अल्कोहल साथ में करते हैं, फॉर एग्जांपल OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसका नाम है ग्लाइकॉल। क्या नाम है इसका? ग्लाइकॉल इसका नाम, दैट इज अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH ग्रुप है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है, तो इससे भी केटाल फॉर्मेशन होता है। हमने यहाँ केटोन का एग्जांपल लिया है, केटाल बनता है। तो यहाँ पर जो बनने वाले केटाल है वो साइक्लिक केटाल है, बराबर है। कौन से बनते हैं? साइक्लिक केटाल। यहाँ पर जो बनने वाले केटाल है वो क्या है? साइक्लिक केटाल है। R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश, एक केटोन का पार्ट एज इट इज, ये C है। तो इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O इस कार्बन के साथ में, इस तरह से साइक्लिक केटल बन जाते हैं। क्या बनता है? साइक्लिक केटाल, बराबर है। अभी यहां पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, केटोनिक ग्रुप है। अगर कुछ कंपाउंड ऐसे है जिसके अंदर मल्टी फंक्शनल ग्रुप है अदर देन कार्बोनिल ग्रुप, और कोई ग्रुप है, और हमको कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शन नहीं करना है, केटोनिक ग्रुप पे रिएक्शन नहीं करना है, बट जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है उस पर रिएक्शन करना है कोई कंपाउंड के, तो इस तरह की पहले हम रिएक्शन कर लेते हैं। क्या होता है? इस रिएक्शन से इस केटोन ग्रुप को हम प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। इसको हम प्रोटेक्टिंग रिएजेंट भी कहते हैं। तो यहां पर इसका साइक्लिक केटल बनता है। अभी सपोज मल्टी फंक्शनल ग्रुप है तो केटोन तो साइक्लिक फॉर्म में चलेगा, केटल फॉर्म में। तो जो अब रिएक्शन है दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन हो सकती है, और जो फाइनल कंपाउंड बनता है उसको फिर से हम डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करते हैं, तो हमको ओरिजिनल अल्डिहाइड मिल जाता है फिर से। मींस द डायोल्स आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्टिंग द केटोन ग्रुप इन द मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो इसमें भी क्या होता है? इसकी अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट एसिड, इसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं तो हमको फिर से ऐसा केटोन मिल जाता है, राइट। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, दैट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो इसका यूज क्या है? दैट इज यूज फॉर द टू प्रोटेक्ट द केटोनिक ग्रुप इन द मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ Grignard reagent. एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखना है हमको। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? आपको पता है, RMgX इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अभी ये रिएक्शंस आपने लास्ट टॉपिक में अल्कोहल फिनॉल ईथर में लर्न की है, फिर से हम ये रिएक्शंस यहां पर लर्न कर लेते हैं। RMgX की रिएक्शन है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है। तो इस यहां पर क्या ध्यान में रखना है कि फॉर्माल्डिहाइड के साथ की जो रिएक्शन है, फॉर्माल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होने के बाद प्राइमरी अल्कोहल अदर देन फॉर्माल्डिहाइड, अदर अल्डिहाइड हम लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साथ में, दैट यूज अ सेकेंडरी अल्कोहल। और केटोन के साथ में अगर हम रिएक्शंस करते हैं एडिशंस की, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो देन वी गेट अ टर्शियरी अल्कोहल। ये आपने ध्यान में रखना है। यहां पर क्या ध्यान में रखना है? अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशंस फॉर्मालिटी के साथ में होती है तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस अदर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मालिटी से होती है तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, और इसकी रिएक्शन केटोन के साथ में होती है किसकी, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हमको टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस दिस रिएक्शन। सिंपल फॉर्मालिटी के साथ प्राइमरी अल्कोहल क्यों बनता है देख लीजिए एक बार। H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसके साथ में हम RMgX की एडिशन करते हैं, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको बताया गया है कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करते हो तो आपने एरो के ऊपर ड्राई ईथर लिखना है, बिकॉज दैट रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन अ ड्राई ईथर, नहीं तो रिएक्शंस भी नहीं होती है और मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। तो RMgX के साथ में रिएक्शन का होती है तो क्या होता है, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। आपको क्या बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये जो R ग्रुप है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को अटैच है, मैग्नीशियम को अटैच है, सो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, और कार्बन कार्बन को अटैच होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था, इसीलिए ये R ग्रुप यहाँ इस कार्बन को अटैच हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट OMgX, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और इस कॉम्प्लेक्स का हम एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं। H3O प्लस या H प्लस H2O या H2O कुछ भी ले सकते हैं आप। क्या मिलता है यहाँ पर आपको, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH प्लस MgXOH। मीन्स ये जो अल्कोहल है OH ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, दैट कार्बन इज अ प्राइमरी कार्बन, सो दैट अल्कोहल इज सेड टू बी द प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि उस कार्बन को एक ही कार्बन अटैच है वो R। नाउ हियर वी प्रिपेयर वैरायटी ऑफ अल्कोहल्स, वैरायटी ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड वही रहेगा, सिर्फ R चेंज हो जाएगा। मीन्स आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चेंज करते हो तो आप वैरायटी ऑफ अल्कोहल्स यहाँ बना सकते हो बाय यूजिंग दैट रिएक्शंस। ओके, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं फॉर्माल्डिहाइड से, बाकी अल्डिहाइड से क्यों नहीं बनते प्राइमरी अल्कोहल, तो देखिए हम यही कंपेयर करते हैं। बाकी अल्डिहाइड में क्या रहेगा, एक H के बजाय R आ जाएगा यहाँ पर, बराबर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक H के बजाय R आ जाएगा। यहां भी कॉम्प्लेक्स में R मीन्स क्या है, अल्किल ग्रुप, R क्या है, अल्किल ग्रुप है। देखिए ये सब रिएक्शंस आपने प्रीवियस टॉपिक में अच्छे से लर्न किए हैं, हम जस्ट इसको रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये जो कार्बन है कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी कार्बन है। व्हाई दिस सेकेंडरी, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू दिस टू कार्बन। R मीन्स अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप में कार्बन है, मीन्स ये कार्बन इसका यहाँ का कार्बन और यहाँ के कार्बन का अटैच है, means that carbon is attached to two other carbon, so that is a secondary carbon, and that OH is attached to secondary carbon, so that alcohol is a secondary alcohol। means सिर्फ फॉर्माल्डिहाइड हमको प्राइमरी अल्कोहल देता है, रिमेनिंग अल्डिहाइड्स हमको क्या देते हैं यहाँ पर, सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। अब केटोन की बात करते हैं तो केटोन में क्या होता है कि वहां तो दोनों ग्रुप अल्किल ग्रुप से अटैच है। केटोन में क्या होता है, दोनों ग्रुप अल्किल ग्रुप से अटैच है। सपोज ये अलग है तो इसको हम R डैश से लिख सकते हैं, तो यहां पर भी R डैश आ जाएगा, बराबर है। या इसको आप R डैश लिखते हो तो इसको आप R डबल डैश भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा R डबल डैश, यहाँ का R डैश एज इट इज। तो जो कॉम्प्लेक्स है तो इस कॉम्प्लेक्स से आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर इस तरह का अल्कोहल मिल जाएगा, बराबर है। इस तरह का आपको यहाँ अल्कोहल मिल जाता है।
मीन्स देखिए ये जो कार्बन है जिसको OH ग्रुप अटैच है, इस कार्बन को 3 अल्किल ग्रुप अटैच है, वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। मीन्स दैट कार्बन इज अटैच टू 3 कार्बन, means that carbon is a tertiary carbon and an OH group is attached to tertiary carbon, so there is formation of tertiary alcohol. Means from the ketone, the addition of Grignard reagent to the ketone gives a tertiary alcohol. When ketone react with any Grignard reagent, then there is formation of a tertiary alcohol takes place. देखिए यहाँ वेराइटी ऑफ अल्कोहल बना सकते हैं आप, यहाँ पर AR डैश सेम हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, यहाँ का R अलग हो सकता है। मीन्स कॉम्बिनेशन में कितने अल्कोहल बनेंगे, AR डैश AR ट्रिपल डैश सेम निकालो अलग निकालो, बराबर है। मीन्स नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैट अल्डिहाइड्स एंड केटोन्स बाय यूजिंग द वेराइटी ऑफ Grignard reagents. In this way, the addition of Grignard reagent takes place to the aldehydes and ketones. That reaction you already discussed in previous topic. Just we revise here. Then we see the next one is a nucleophilic addition elimination of aldehydes and ketones with ammonium derivative. Nucleophilic additions of aldehydes and ketones with ammonium derivatives. Ammonium derivatives means what? Ammonia means क्या होता है? Ammonia means NH3. Ammonia means NH3, बराबर है। अभी हमको अमोनिया की रिएक्शन टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए हम नहीं लेने वाले हैं कि अमोनिया की रिएक्शंस फॉर्माल्डिहाइड साथ में अलग होती है, अल्डिहाइड साथ में अलग होती है, एसीटोन साथ में अलग होती है, बराबर है। बट हमको यहाँ पर जो दिए हुए रिएक्शन ऑफ अमोनियम डेरिवेटिव्स मींस इसके अंदर का H इज रिप्लेस बाय अदर ग्रुप एंड इसे हम लिखते हैं NH2Z, दैट इज अ अमोनियम डेरिवेटिव, बराबर है। अमोनियम डेरिवेटिव लेना है मींस अमोनिया तो नहीं, अमोनियम डेरिवेटिव है, मींस जेड क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर जेड हो सकता है, OH हो सकता है, इसे क्या हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलामाइन, जेड हो सकता है NH2, इसको हम कहते हैं हाइड्रेजिन, जेड हो सकता है NHPH, और दैट PH मीन्स बेंजीन रिंग, दैट इज अ फिनिल हाइड्रेजिन। ये NHCONH2 हो सकता है, इसे हम कहते हैं सेमी कार्बाइड। देन R ग्रुप हो सकता है, AR हो सकता है, RL ग्रुप हो सकता है, और 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्रेजिन हो सकता है। मींस NH, इसको ऑलरेडी एक इधर NH2 है, NH ए बेंजीन रिंग 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन ग्रुप, बराबर है। तो इस तरह के ग्रुप जेड की जगह हो सकते हैं, जेड मीन्स OH, जेड मीन्स NH2, जेड मीन्स NHPH, जेड मीन्स NHCONH2, जेड मीन्स R, जेड मीन्स AR, जेड मीन्स NH, और ये जो ग्रुप है इसे हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन का ग्रुप बोलते हैं। सो जेड इतने हो सकते हैं। तो इन सारे के साथ दीज आर द अमोनियम डेरिवेटिव्स, और इसके साथ में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, दैट इज कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज एडिशन एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है। सो वी डिस्कस ऑल दिस रिएक्शंस हियर। अल्डिहाइड की रिएक्शंस R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, या रिएक्शन विद द केटोन R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश डबल बॉन्ड O, ये अल्डिहाइड या केटोन की हम रिएक्शंस करते हैं किसके साथ में, अमोनियम डेरिवेटिव के साथ में, NH2Z, दैट इज द अमोनियम डेरिवेटिव्स, बराबर है। तो क्या होता है, इसके एडिशंस होती है यहाँ पर, व्हाट हैपेंस हियर, द एडिशनल रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसके अंदर का एक H इसको होता है और बाकी का न्यूक्लियोफाइल पार्ट इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अटैच हो जाता है। मींस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड, अभी NH2 का NHZ, इसको H एज इट इज, बराबर है। तो यहां से क्या हो जाता है, यहां से AH और AOH में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है -H2O, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड
NZ, बराबर है। इस तरह के कंपाउंड बन जाते हैं। क्या बनते हैं? इस तरह कंपाउंड बनते हैं, इसको हम इमाइन बोलते हैं। डबल बॉन्ड एन आ गया मीन्स ये क्या है? इमाइन है। डबल बॉन्ड एन आया मीन्स ये क्या है? दैट इज अ इमाइन। डबल बॉन्ड एन मीन्स दिस इज अ इमाइन, बराबर है। तो यहाँ इमाइन बन जाता है, दैट इज सेड टू बी द स्किप बेस। इसको हम स्किप बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? स्किप बेस कहते हैं। मीन्स द वैरायटी ऑफ स्किप बेस आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अल्डिहाइड्स एंड केटोन्स। तो इस तरह की रिएक्शन होती है अल्डिहाइड और केटोन की रिएक्शन। बट जो फर्स्ट स्टेप है, दैट स्टेप इज अ रिवर्सिबल स्टेप, बराबर है। और हमको इस रिएक्शंस के अंदर यील्ड कम मिलती है। अगर हमको इसकी यील्ड बढ़ाना है रिएक्शंस की, तो दैट रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, वीक एसिडिक मीडिया। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होना है, वीक एसिड यूज करना है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं, कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो जो NH2Z है, जो भी अमोनियम डेरिवेटिव है, इसकी अगर आप कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है? इसका सॉल्ट बन जाएगा। और सॉल्ट बनने के बाद जो नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का था, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का था, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी या निकल जाएगी। सो वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा, बराबर है। वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड मीडिया में रिएक्शंस नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया में रिएक्शन क्यों नहीं होती है? तो अमोनियम डेरिवेटिव का कन्वर्जन सॉल्ट में हो जाता है, फिर वो न्यूक्लियोफाइल नहीं रहते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया में रिएक्शंस नहीं होती है। बट रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होना है, इसकी यील्ड बढ़ाना है, तो वीक एसिडिक मीडिया लगता है। दैट रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड। अब जो जैसी रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ में होती है, वैसी रिएक्शन केटोन के साथ में होती है, बराबर है। एडिशन सिर्फ C डबल बॉन्ड O में होती है, एडिशन और एलिमिनेशन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल में निकलता है। सो इसे हम कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इमाइंस होता है। अभी कितने कंपाउंड्स है? 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड, साथ में हम 6 रिएक्शन देखते हैं। वहाँ जितने भी हम वैरायटी ऑफ R बदलेंगे, वैरायटी ऑफ अल्किल ग्रुप लेंगे, उतने हमको वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं, बराबर है। सो वी सी फर्स्टली द जनरल रिएक्शंस फॉर दैट। तो फर्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं। इस अल्डिहाइड की R सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, H डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन अगर मैं NH2OH के साथ में करता हूँ, यानी H2OH इन प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड, वीक एसिडिक मीडिया में रिएक्शन होने वाली है। तो क्या बनता है यहाँ पर? हाइड्रोक्सिल अमाइन सॉरी ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, इसकी रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ में करता हूँ तो इसका ऑक्साइम बन जाता है R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यहां पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH प्लस H2O। इस रिएक्शन को इसको हम कहते हैं ऑक्साइम। ये अल्डिहाइड का ऑक्साइम है, इसलिए अल्डोक्साइम कहते हैं। अल्डोक्साइम अगर एक केटोन का ऑक्साइम होता है तो इसको हम केटोक्साइम कहते हैं। R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश डबल बॉन्ड O प्लस दैट NH2OH, साथ में अगर रिएक्शन करते हैं, अगेन दैट रिएक्शन इन अ वीक एसिड, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया केटोक्साइम प्लस वाटर। तो इस तरह से ऑक्साइम बन जाता है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में। अगर ये हम अमोनिया डेरिवेटिव लेते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल अमाइन। द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में हम रिएक्शन देखते हैं तो हमको इस तरह कंपाउंड मिलता है ऑक्साइम। इस ऑक्साइम का फिर से हम रिडक्शन करते हैं तो हमको अमाइंस मिलता है। वो रिएक्शन आपको नेक्स्ट टॉपिक में होने वाली है, ठीक है। नाउ वी सी द अनदर रिएक्शंस। देखिए यहाँ पर हम R चेंज कर सकते हैं और वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स, वैरायटी ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। RCH3 लो आप, R C2H5 लो, RC3H7 लो, राइट डाउन द नंबर ऑफ रिएक्शंस फॉर दैट। हमको सिर्फ क्या ध्यान में देना है?
रिएक्शंस कहाँ पर होती है और क्या चेंज होता है। रिएक्शन होती है सी डबल बॉन्ड ओ पे, यहाँ का डबल बॉन्ड ओ के साथ का निकल जाता है, डबल बॉन्ड एन के साथ में आ जाता है, साथ में OH मीन्स NH2 ग्रुप का H2 निकल जाता है और नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। इतना आपको याद रखना है। जो जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में एग्जाम्पल है उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको क्या याद रखना है, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड वो है, इसका कन्वर्जन मीन्स इधर का पार्ट कुछ भी रहो RH, ये जो C डबल बॉन्ड वो है, तो here that C डबल बॉन्ड वो कन्वर्ट्स इनटू द C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, उसके साथ में जो सब्स्टिट्यूट होगा OH रहेगा, NH2 रहेगा, NHPH है, NHCO NH2 है, R है, जो भी है। तो इस तरह का यहाँ पर इमाइन फॉर्मेशन बन जाता है, इसको हम स्किप बेस कहते हैं, बराबर है। यहाँ अल्डिहाइड है या केटोन है इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों के साथ में रिएक्शन होती है, इस तरह से इमाइन बन जाता है। आपको एक याद रखना है, डबल बॉन्ड वो निकालना है, डबल बॉन्ड N, उसको जो अटैच वो लगा देना है, ठीक है। इस तरह से ये सिंपल रिएक्शन है। आपको मैंने पहले बताया कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना रहता होता है। सपोज एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन है, व्हेनेवर दैट एसिटाल्डिहाइड इज reacted with hydroxyl amine in a weak acidic media, it undergoes a condensation and it use a oxime, acetaldehyde तो acetal oxime, ओके। इस तरह से हमको उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। और 80% क्वेश्चन में सिर्फ रिएक्शंस को ही मार्क होते हैं, जहां डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां डिस्क्रिप्शंस को भी मार्क्स होते हैं। हम सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस देखो ये NH2 तो है, उसको क्या ऐड होगा NH2, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेजिन। इसका नाम क्या है, हाइड्रेजिन है। वीक एसिडिक मीडिया में रिएक्शन होती है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। क्या करना है, यहाँ का H2 निकालना है, यहाँ डबल बॉन्ड करना है, इसको NH2 एज इट इज रहेगा। इसका नाम, इसको बोलना हाइड्राजोन प्लस वाटर, इसको क्या बोलना है, हाइड्राजोन, ठीक है। इस तरह इसकी रिएक्शन होती है NH2 की। अगर ये NH2 के बजाय ये NHPH है तो सेम रिएक्शन होती है फिर से वीक एसिडिक मीडिया में। क्या बनने वाला है यहाँ पर, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड हो की बजाय डबल बॉन्ड N, यहाँ का H2 निकला है, यहाँ का नहीं, ये NHPH वैसे ही रहेगा, इसको NHPH, बराबर है। तो ये होगा फिनिल हाइड्राजोन, पहले बना था हाइड्राजोन, अब ये बनता है फिनिल हाइड्राजोन, क्योंकि इसका नाम है फिनिल हाइड्राजिन। दिस इज अ फिनिल हाइड्राजिन, ओके, ठीक है। तो इस तरह से फिनिल हाइड्राजोन बनता है। NH2 सिंगल बॉन्ड NHCO NH2 की साथ रिएक्शन होती है, अगेन दैट वीक एसिडिक मीडिया में रिएक्शन होती है। तो क्या बनता है, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन में आ जाएगा N, यहाँ का H2 और यहाँ का O, H2 बाहर पड़ता है, सिंगल बॉन्ड NHCO NH2 प्लस H2O। इस तरह से रिएक्शन बन जाती है यहाँ पर, और इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजाइड के साथ में रिएक्शन थी, यहाँ बन गया सेमी कार्बाजोन, इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। ये आ गया सेमी कार्बाजोन, ये क्या होगा, सेमी कार्बाजोन। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। देखिए ये NH2 सिंगल बॉन्ड NH, इसको पहले हमने फिनिल हाइड्राजिन देखा था, बराबर है। हमने क्या देखा था पहले, फिनिल हाइड्राजिन। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजिन। फिनिल हाइड्राजिन को हमने क्या लिखा था, PH, बराबर है। फिनिल हाइड्राजिन को हमने लिखा था PH। तो इस PH के बजाय मैं यहाँ बेंजीन रिंग निकाल देता हूँ।
ठीक है, ये क्या हो गया, फिनिल हाइड्राजीन। इस फिनिल हाइड्राजीन को अगर ये 2 नंबर पे मैं NO2 और 4 नंबर पे मैं NO2 ग्रुप अटैच कर देता हूँ तो इसका नाम बन जाता है 2,4-डायनाइट्रो फिनिल हाइड्राजीन। 2,4-डायनाइट्रो फिनिल हाइड्राजीन। तो ये 2,4-डायनाइट्रो फिनिल हाइड्राजीन की रिएक्शंस अगर अल्डिहाइड और कीटोन साथ में होती है, अल्डिहाइड या कीटोन साथ में होती है, तो दोनों साथ में रिएक्शन होती है, एंड दैट इज द डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट और दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ C डबल बॉन्ड ग्रुप। अल्डिहाइड रहो या कीटोन रहो, अगर C डबल बॉन्ड ग्रुप है क्या नहीं देखने के लिए हम ये टेस्ट यूज करते हैं लैब के अंदर, दैट इज लैबोरेटरी टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो यहाँ पर क्या बन जाता है, रिएक्शन को वीक एसिड मीडिया में होती है या नहीं भी रहा एसिड तो भी रिएक्शन हो जाती है यहाँ पर। तो क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H एज इट इज, डबल बॉन्ड किसके साथ बनता है, इस N सिंगल बॉन्ड NH, इसको जो बेंजीन रिंग अटैच है एज इट इज, 2 नंबर पे NO2, 4 नंबर पे NO2। In this way here the formation of a 2,4-dinitrophenylhydrazone takes place। और यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, सभी रिएक्शंस के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है। इसी तरह से 2,4-dinitrophenylhydrazine का कन्वर्जन होता है 2,4-dinitrophenylhydrazone में। ओके, वी स्टॉप हियर।